Jai Baba, everybody. Welcome to our Thursday session. We shall now begin with a small prayer. Janice, could you do the prayer, please? Beloved Avatar Meher Baba ki Jai. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki Jai. 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 Thank you, Janice. Today happens to be a very auspicious day. And before we commence our program, I'd like to invite our one and only Lord Meher Baba to please come and join us during this entire session. Not only just join us, but guide us throughout this program. Baba, let each word be spoken as per your wish. Thank you and Jai Baba. I don't know why everybody is so sober today. It's a day of rejoicing. Number one, it is Dasera. दशहरा के दिन के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है. It is about the victory of the good over the evil. People also say that Dasera means getting victory over our 10 different vices that we have within ourselves. So I feel personally that that would be a greater victory than conquering the world. Today also happens to be Gandhiji's birth anniversary. Gandhiji, as we all know, had met Baba several times. Not very many people know that Lal Bahadur Shastri also celebrates his Jayanti on this same day. Lal Bahadur Shastri is one of my favorite prime ministers. He gave us this slogan of Jai Jawan, Jai Kisan, and so brought this country through the war. Very simple man. And may Baba bless his soul wherever he might be. Today also happens to be the birthday of Mehra, no, sorry, not Mehra, Mehru, who was amongst our Baba's women Mandli, and birthday again of Darwin Shaw, also Baba. So a lot of celebrations are in order. And to top it all, we have with us Madam Dilmer Bharucha Bhola. She's going to talk to us about Dr. Hoshang Bharucha, her father. And एकदम तैयार थईने આવી ગઈ દિલમેર. જય બાબા. जय बाबा. Okay.
I had the good fortune of knowing Dr. Barucha quite well, if I may say so. He, for one, was all for Baba. उन्होंने अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया था. Although he was married and had this lovely daughter and everything, his entire life was devoted to Meher Baba. He led an exemplary life as far as I'm concerned, because मेरे जैसे चोर उचक्के के लिए he was a role model. He lived every breath as per Baba's wish. That's all I can say. And Dilmer is going to share the times when Dr. Barucha and who else, Dilmer? Vesuna side, Kavas Vesuna. Dr. Barucha and Mr. Kawas Vesuna both were in the Mandli Hall at Merazad for 10 days. And Barucha ji has made notes from those times which are really worth sharing, and therefore I would request Dilmer to please take it from here on, and let's enjoy this session. Jai Baba. Jai Baba. Thank you, Sam. Sorry, Dilmer, sorry to interrupt. There is one announcement to be made about the Housey program that we are going to be having from our center. Janice, do you want to do the announcement, please? Yes, uncle. So, Jai Baba, everyone. Can you speak up a this bit Sunday- louder and have a cup of tea if you want, but Is this loud enough put now? some life into the... Is this loud enough now? Yes, madam, good. Yes. So we have the first Winning His Heart event coming up on this Sunday, which is Baba Housey. It will start at 5:30 in the evening, and we have it in a hybrid mode, which is from the center and online also. And regarding this, what we require is participants have to create a ticket like this that you see on the screen just now. And you have to create 5 columns and 4 rows. Mention your name on top, bold name, so that we can see this is your ticket. And you have to pick up 50, these are the 50 words provided on the flyer which we have shared. And these words are from this the events or the things that were in the year 1925, and it marks the centenary year this year in the 2025 year, and hence these words are all connected to the centenary celebrations. So you create a ticket like this, and you click a clear picture and email it to us on victoryuntothee@gmail.com, which is shown here. And this has to be sent to us by the 3rd of October. And also, in case you want to participate from the center, you do have to, it's mandatory to send the ticket to us via email, or you can WhatsApp it to us in case email is not convenient to you, and we will do the needful. But it is mandated to share the ticket. And in case you wish to, play from the center itself, you have to carry your ticket along to the center, and you can participate from the center also. So these are the 50 words. I'll share the details in the chat box here as well. And you can connect with any one of us for further queries or any issues. Thank you so much. Jai Baba. Thank you, Janice. In case anybody wants to see what the ticket looks like, I've filled up mine. It may be very faint, but you put your name and different columns, fill them up with the words from your choice.
words of your choice and submit it, and that's it, and keep smiling. And the one who wins the first prize gets dinner at the Taj Mahal Hotel at Grant Road. Thank you. Okay, Dilmer, Yes, thank you. enough of fooling around. Let's get to business. Jai Baba. Jai. Thank my father was invited to stay at Mehrazad with Mr. Kawas Vesuna from the 15th to the 25th of October 1955. These are his notes, which he had typed out after that in whatever condition. I'm keeping them carefully. So, बिफोर आई स्टार्ट आई एम नॉट टू श्योर कि क्यों दोनों इन दोनों को ही नवसारी सेंटर से बुलाया गया और बाकी के नहीं, लेकिन डॉक्टर भरूचा के बारे में तो आप जानते हो. मिस्टर वेसुना के बारे में मैं बताती हूँ. ही वॉज द पोस्ट मास्टर, वेसुना मास्टर ऑल्सो मेनी पीपल यूज टू कॉल हिम. So, and later on, when in between, when we didn't have our Navsari Baba Center, we used to have lot of meetings at his place also. And then every Sunday, we used to meet at his place regularly till he was alive. Jitna enthusiastic, energetic, and on the move my father was, utne hi calm and composed and, a thinker was Vesuna Sahib. And just a short brief about him, how did he come to Baba? तो जैसे वो पोस्ट मास्टर थे एंड ही बिलोंग टू अ स्मॉल प्लेस कॉल्ड वेसु, जहां से ये वेसुना सरनेम आता है. तो उस टाइम पे जब पारसी लाइंग इन हॉस्पिटल बोलते थे, तो उनके फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हुई, तो उधर 1 मंथ उस टाइम पे रखते थे इन द हॉस्पिटल, अ न्यू मदर एंड चाइल्ड. तो द डॉक्टर एट दैट टाइम वाज डॉक्टर आलू खम्बाटा, who was Baba, who knew Baba, and she used to stay in Mehrabad also towards the end. Tall lady, thin lady, if you all remember her. तो उन्होंने, when Mr. Vesuna used to come to visit the wife and baby every, I guess, I don't know when, evening, morning, तो तभी she brought up the topic के have you heard of Meher Baba? तो ही सेड हाँ हाँ पोलाइटली, एंड उनकी नई डिस्कोर्सेज अभी निकली है एंड इट इज वर्थ रीडिंग, 3 वॉल्यूम्स है वगैरह. हाँ हाँ पोलाइटली, ही वाज अ जेंटलमैन, एब्सोल्यूट जेंटलमैन, कुछ बताया नहीं. देन पन ये उनके मन में ये डिस्कोर्सेज शब्द रह गया. तो ही सेड ये डिस्कोर्सेज एंड ही इज गॉड इन ह्यूमन फॉर्म वगैरह. देन एक दिन उन्होंने मनी ऑर्डर से ये डिस्कोर्सेस के 3 वॉल्यूम्स मंगवाए. एंड उन्होंने बोला, उस टाइम उनकी पोस्टिंग मरोली में हुई थी. मरोली इज अ स्मॉल छोटा विलेज बिटवीन, अभी तो इट्स अ बसलिंग प्लेस, बिटवीन नवसारी एंड सूरत. तो स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी है मरोली. तो वो उनकी पोस्टिंग मरोली के पोस्ट ऑफिस में हुई थी. तो वो जैसे जाते थे, कभी बस से, कभी ट्रेन से. तो उस दिन उन्होंने वो बुक्स लेके पोस्ट ऑफिस गए थे. और फिर उनको पता चला कि द ब्रिज, रेलवे ब्रिज कनेक्टिंग नवसारी एंड मरोली हैज ब्रोकन, एंड वो 3 दिन तक वो रिपेयर नहीं हुआ होगा, एंड या हुआ whatever. तो he had got 3 full days because no parcels were coming, no post, everything was shut because of some floods, because of the floods. So he read the discourses back to back, and he was convinced that this person is no ordinary person, and this is God in human form. Then बहुत correspondence की, लिखा बाबा को कि मुझे बुलाओ, I would like to meet you. But then Baba was new life and kuch na kuch reh gaya. Then but the correspondence continued. Then जब 1949 में जब बाबा ने वन डे, एक दिन के लिए 16 अक्टूबर को न्यू लाइफ से ओल्ड लाइफ में आए थे इन मामलेश्वर, तब उनको चांस मिला. एंड दैट वाज द टाइम देयर वर
few newcomers. एक थे प्रताप काका आहिर, दूसरे थे वेसुना साहिब. So that time he had met Baba for the first time. And then of course he was always with Baba throughout करके. So coming back to these 10 days that Vesuna Sahib and Dr. Bharucha spent at Merazad. Last time थोड़ा मैंने बोला था, so I'll just go a little quick with that. They reached the Nagar station at 8:10 because the train was late, and then उधर ही waiting room में स्नान वान करके they got ready and पादरी आए and 9:30 they reached Merazad. फिर उनके रूम्स दिखाए गए उनको एंड बाबा मीटिंग रूम या मंडली हॉल में थे एंड वहां बाबा ने कहा कि आप बैठो लेकिन दर्शन या बाउ डाउन नहीं करना है करके. फिर बाबा ने कहा कि यू स्टे विथ मी टिल 25 तारीख तक एंड देन बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य मैं दूंगा जो आप दोनों को करना है सूरत जाके 28 अक्टूबर को और 31st को ही आपको जाना है वापस नवसारी. तो ये दोनों ने रेडीली अग्री कर दिया. फिर बाबा ने कहा कि फ्रॉम 15th to 25th के दिन में 4 दिन आप फास्ट रखोगे, 17th, 19th, 22nd एंड 23rd एंड साइलेंस भी. तो ये फास्ट रहेगी 8 AM to 8 PM तक, सुबह से शाम तक. उसमें साइलेंस भी रखोगे एंड नो फूड नो वाटर, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको. एंड आपकी जो ड्यूटीज है वो मंडली आपको समझा देंगे सॉरी. एंड ये जो मीटिंग रूम है वो क्लियर करना है. और बाबा कहते हैं कि ये जो हैवी चेयर है, जो मेरी चेयर है, वो अकेले उठाना नहीं, साफ सफाई के लिए कोई और साथ में रखना. और जो भी कुछ आपको सुनना है तो फ्रांसिस के पास रिकॉर्डिंग्स है डिस्कोर्सेस की, आप सुन सकते हो. और आपको पढ़ने के लिए, सॉरी नॉट सुनने का, पढ़ने के लिए भी आपको मटेरियल दिया जाएगा करके. फिर बाबा पूछते हैं कैसी गई जर्नी, कैसे रहे ट्रैवल, नवसारी में आपका दिन रूटीन कैसे होता है. फिर बाबा रूटीन समझाते हैं यहाँ का पूरे जो इन ऑर्डर के आप उठोगे ये टाइम पे, चाय होगी, मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट मॉर्निंग टी 6 AM, फिर ब्रेकफास्ट, lunch before 12 noon, dinner by 7 PM and afternoon चाय at 3 PM करके. Eat well, मस्त खाने का बाबा ने कहा. फिर ये जो है ना, जो गॉड मैन हम कहते हैं, दिस इज माय टेक, कि इतने सिंपल, इतने केयरिंग और इतने इंस्ट्रक्शंस जो कोई भी कहेगा, अगर यू हैव कम टू माय आश्रम, फॉलो इट, इट्स नॉट दिस. बाबा ने खुद पर्सनली ये दोनों को समझाया और एट ईज किया. फिर जो फूड पैकेजेस थे नवसारी से वो सभी खुलाए. और उन टाइम पे डॉक्टर हैरी कैनमोर जो न्यूयॉर्क के जो बाबा फॉलोअर थे, ही वाज अ कायरोप्रैक्टर एंड ही आल्सो tall big person. He was also blind and couldn't hear very clearly also. उनकी भी स्टोरी फिर आती है तब. I'm just going according to the chronicle. तो उनको वो कहते हैं कि ये दोनों को एवरी वीक इधर बुलाना चाहिए क्योंकि इतने सारी गुड चीज मिल रही है खाने के लिए. क्योंकि एवरी पैकेट जो बाबा खोलते थे उसमें से एक बाइट जो था वो बाबा ये हैरी को देते थे चखने के लिए करके. फिर बाबा कहते हैं कि बाबा हंसते हैं और कहते हैं कि हैरी के पास वो लाइक अ रिच फैमिली से है, बट ही यूजेस दिस मनी फॉर मी वेरी फ्रीली. ही इज क्लेवर, विटी एंड हैज ग्रेट लव फॉर मी. एंड उनके साथ एक वो पोलरॉइड कैमरा शायद उस टाइम पे जस्ट आया था, कि वो एक कैमरा है कि जो 1 मिनट में वो डेवलप करके आपको प्रिंट देगा. और उनके पास एक रिकॉर्डर भी था, वायर रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करते थे. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बाबा ने कहा, ही इज ऑल्सो ओबीडियंट, which was very important करके. and he was a big favorite of Baba at that time. फिर बाबा का प्रोग्राम था, he would come 7:45 to 8, he would talk
in the meeting hall, सबको पूछ के, then he would sit half an hour with कायकोबाद and उनका internal जो काम था वो करते थे। और फिर कोई पुअर पर्सन को बुलाते थे और बाबा उनके फीट वॉश क्लीन करके उनको आइदर 21 नहीं तो 31 रुपया वो देते थे करके, द पुअर पर्सन को करके, ये रेगुलर था। फिर हैरी परवरदिगार प्रेयर बोलते थे, रिपेंटेंस प्रेयर बोलते थे, और फिर बाबा वॉक पे जाते थे, उनकी कुर्सी, उनकी चेयर, उनकी सॉरी अम्ब्रेला लेके, और कावस वेसुना को और डॉक्टर भरूचा को भी काफी चांसेस मिले, और एक दो फिल्म्स में भी है जहां वो दोनों है बाबा के साथ करके। तो ये उनके थे। फिर बाबा ऑफ कोर्स 11 बजे निकल जाते थे विमेन मंडली के पास। नाउ बाबा ने कहा कि एवरी डे दोनों को कि एक प्रेयर आपको एवरी डे 7 से 8 बजे तक बोलनी ही है, और वो प्रेयर थी, ऑलमाइटी गॉड हेल्प अस ऑल टू होल्ड ऑन टू बाबा एंड हेल्प बाबा टू डेफिनेटली मैनिफेस्ट एज योर अवतार बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर। ये जो थी लाइन, ये उनको बताई गई कि एवरी डे 7 से 8 बजे शाम को ये बोलनी ही थी करके। और फिर बाबा ने स्टे विद गॉड की पहली कॉपी जो फ्रांसिस ब्रैबेजॉन की थी वो बताई, एंड फ्रांसिस को बोला कि यू रीड अ पैसेज फ्रॉम इट करके। फिर बाबा ने कहा कि फ्रांसिस को लो ब्लड प्रेशर है क्योंकि उन्होंने भी काफी फास्ट की है। देन काका बारिया को पॉइंट करके वो कहते हैं कि ही विल नॉट डाई टिल बाबा ब्रेक्स हिज साइलेंस। काफी टाइम बाबा ये 10 दिनों में बोलते थे कि बाय दिसंबर, एंड कुछ डेट भी दी थी कि ऑन दैट डे ऑफ दिसंबर तो पक्का आई विल ब्रेक माय साइलेंस। दिस इज 59 की बात। और उस टाइम पे जब ये दोनों मेराजाद में थे, तब काफी सेंटर्स को भी बाबा ने ये ऑर्डर दिया था कि आपको भी जप करना है फॉर 24 आवर्स, और कोई कोई को छोटे टाइम के लिए बोला था। फिर बाबा ने डिक्टेट किया कि एक मैसेज सर्कुलर भेजो, एरज को बताया कि 28 के बाद सभी जन ये जप बंद कर देंगे, और फिर बाबा खुद अपना कार्य, इंटरनल स्पिरिचुअल वर्क खुद करेंगे, एंड ही डिड नॉट नीड एनी हेल्प फ्रॉम हिज लवर्स करके। फिर बाबा ये जो बात ऑन 15th जो हो रही थी इन द मॉर्निंग हाफ, तो फिर बाबा कहते हैं कि द वेस्टर्नर्स बहुत ही कीन थे टू कम टू इंडिया, बट बाबा ने कहा दिस इज नॉट द राइट टाइम, आफ्टर बाबा स्पीक्स दे विल नो एवरीथिंग करके। देन देर इज सम एनजीओ जो बाल मंदिर करके, अ टेम्पल रन एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय स्मॉल चिल्ड्रन नियर कैलकाटा, नॉट एन एनजीओ सॉरी, इट इज अ मंदिर। तो उनके बारे में बाबा एरच ने बताया, और बाबा भी खुश हुए कि ये बच्चे जो है प्रेयर और सेरेमनीज, पूजा पाठ और आरती जो थे वो खुद करते थे और ये मंदिर संभालते थे करके। तो ये बाबा प्रशंसित हुए ये सुन के करके। फिर दोपहर में आफ्टर लंच जब बाबा आते थे तब लारिस गेम खेलते थे बाबा, और उसमें वो बाबा चीटिंग भी करते थे वगैरह, लेकिन और कोई उनके पार्टनर्स जो थे, लेकिन बाबा चीट कर सकते थे, लेकिन और कोई भी चीट नहीं कर सकते थे करके वैसे। फिर शाम की चाय हुई और फिर बाबा रिटायर हो गए, और शाम के वक्त बाबा वापस उनके रूम में आए और पूछा कि आपका रूम ठीक है, सब कुछ ठीक है, बिकॉज ये फर्स्ट डे था। और फिर डॉक्टर गोहेर ने को बताया गया कि 2 मैट्रेसेस, 2 क्या बेडशीट्स, पिलो वगैरह सब देना है, तो वो देखते हैं करके। और फिर ये सब बाबा ने खुद आके ये किया, और फिर कहा कि आप सो जाओ और टुमारो मैं आपको मेरा गार्डन दिखाऊंगा करके वैसे। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग के पहले की बात, ये जो बाबा आधा घंटा सुबह में कैकोबाद के साथ जो गुजारते थे, वो बाबा बहुत ही स्ट्रिक्ट थे कि जो कैकोबाद के रूम में जो कार्य बाबा का होता था, उस वक्त पे
total silence needed to be maintained. Nobody could talk, nobody should cough, move वगैरह. और ये कहते हैं कि कभी कभी जब क्रोज भी ट्रीज पे आते थे काव काव करते, तब मंडली वाले जाके वो क्रोज को भी शू करते थे, क्योंकि वो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट था बाबा के लिए. एक्सक्यूज मी. अब ये कैकोबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, और उनका जो कार्य था वो मेरे पिताजी या किनको कुछ पता नहीं था. लेकिन कैकोबाद की जो स्टोरी थी, वो वो हमेशा बाबा को एक लाइट में देख सकते थे, 24/7 हमेशा वो बाबा को देख सकते थे करके. अब कैकोबाद बोलते हैं कि many years before he arrived at मेहराबाद, बाबा ने उनको बोला था कि एवरी डे 10 बजे मेडिटेशन करना है फॉर 1 minute. पर what that meditation was, he says, I cannot tell you. उसके बाद, for he was doing this for many years, and उसके बाद he got this vision where he continuously sees a light, and in it he sees Baba करके. This experience is for all 24 hours of the day. और कैकोबाद कहते हैं कि रात को ये इमेज ज्यादा क्लियर है, इन बेटर देन द डे टाइम. एक टाइम तो इतनी ब्राइट लाइट थी कि वो अनकॉन्शियस होके वो गिर गए करके. तो ये कैकोबाद की स्टोरी थी. अब मेरे फादर जब भी जो शाम को टाइम रहता था बैठ के एरज बाकी के साथ लोगों के साथ जो बात करते थे, उनका भी उन्होंने लिखा है करके. तो आई जस्ट रीड एज इट गोस, यू नो. तो ये जो ये था. अब हैरी के साथ जब मेरे फादर और वेसुना साहब ये दोनों बैठे थे, तो हैरी न्यूयॉर्क में फर्स्ट टाइम बाबा को मिले और एन इंटरव्यू विद बाबा. एंड ही सेज के जब मैं वो रूम में से बाहर निकला, आई फेल्ट वीक इन द नीज एंड आई हैड टू रेस्ट फॉर 5 minutes आफ्टर मीटिंग बाबा. इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था. दो ही वॉज ब्लाइंड, ही कुड नॉट सी, तो भी ही सेड के बाबा हैड गिवन हिम द परमिशन टू फील हिज फेस. पर वो कब हुआ था? 1956 में, जब बाबा मर्टल बीच में थे, तब 1 वीक वो मर्टल बीच में रहे थे. तब वो ये उनको बाबा ने चांस मौका दिया टू सी हिज टू फील हिज फेस करके. देन 57 हैरी केम टू इंडिया टू ट्रीट बाबा एट हिज ओन एक्सपेंस. जब बाबा का एक्सीडेंट हुआ था वगैरह, सो ही सेड के वो खुद आए और वो 1 महीना मेहराजाद में रहे. देन उस टाइम पे बाबा ने कहा, यू आर माई अपोसल, यू आर पीटर करके. फिर 59 में तो बाबा के सिक्लूजन जब ये थे तभी ये मिले. एंड हैरी वॉज वेरी क्लोज टू बाबा, या बाबा वॉज वेरी क्लोज टू हैरी, एंड ही वॉज द ओनली men mandli who was allowed to go on the women's side and meet Mehra and Mani and sit there also. And Baba had used to write poems भी बाबा हैरी के लिए बनाते थे, जो कोई कोई है, मैं बाद में पढ़ूंगी. ओके. तो अब हैरी को दिखता था नहीं, और ज्यादा कुछ सुननाई भी नहीं देता था. और 8 बजे के बाद पूरा शांति, सब खाना पीना होके रात को. तो वो लव एंड बहुत, मेरे फादर लिखते हैं कि मेहराजाद वाज लाइक अ ग्रेवयार्ड. इतनी शांतता थी, इतना ये था, नो ट्रैफिक का आवाज या कुछ भी उस टाइम पे. तो हैरी जो थे वो यॉडलिंग एंड सिंगिंग करते थे, उनका खुद का गुनगुनाना गाना वो चालू करते थे, एंड ही हैड अ लाउड वॉइस. तो ये बाबा अलाउड इट. बाबा को बिल्कुल व्हेन ही वाज रेस्टिंग नाइट में बिल्कुल आवाज नहीं अलाउड थी, बट बाबा परमिटेड दिस डिस्टर्बेंस ऑल बिकॉज ऑफ हिज अनबाउंडेड लव फॉर हैरी. फिर एक मेहरदास करके जो थे, वो भी उस टाइम मेहराजाद में रहते थे. तो मेहरदास की स्टोरी क्या है? मेहरदास कहते कहते इन लोग को समझाते कि मैं भी एक सॉर्ट ऑफ साधु ही था, मेरे भी काफी शिष्य थे.
और लेकिन मेरा बहुत बड़ा ईगो था उस टाइम पे, मेरे दास खुद खुद कहते हैं। और उन्होंने सुना कि अरे ये बाबा है, तो उनको लगा कि मैं देखता हूँ ये कौन मेहर बाबा है। तो उस टाइम बाबा सतारा में थे, तो वो पहुंच गए सतारा। और वो कहते कि मुझे बाबा से मिलना है, मैं साधु हूँ, ही वॉज ऑल्सो लिटिल बिग शॉट जैसे। तो उनको बोला गया कि नहीं, बाबा सिक्लूजन में है, किसी को भी मिलते नहीं है, तो सॉरी करके। तो वो ही वॉज रिफ्यूज्ड एन इंटरव्यू। तो उनको ये हुआ कि नहीं, मुझे तो मिलना ही है बाबा को। तो नेक्स्ट डे सुबह में अर्ली मॉर्निंग वो आके बाबा के बंगलो के गेट के पास बैठ गए, और वहां ही बैठे रहे। और इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, अभी ईयर या टाइम कौन सा मंथ का नहीं लिखा है, बहुत जोर से बारिश हुई। और वो बारिश में गेट के पास बैठे रहे कि मुझे बाबा से इंटरव्यू लेना ही है, दर्शन लेना ही है। 3 बजे बाबा ने मंडली को किसी को भेजा, और वो अंदर बुलाया गया, और उन्होंने बाबा के दर्शन लिए। और फिर सब कुछ उनका साधुपना सब छोड़ के ही, आई मीन ही एक्सेप्टेड के बाबा इज गॉड, या जो भी उनके मन में वो हो गया। एंड he went inside and the rain stopped. It was like all of a sudden, जो वो अंदर गए उसके बाद वो बारिश भी ये हो गई करके बंद हो गई। अब काका बारिया करके एक दूसरे मेन मंडली जो थे उस टाइम पे जो थे, तो उनकी जो स्टोरी है, तो काका बारिया भी नवसारी के थे, तो ओल्डेस्ट लवर्स ऑफ बाबा। एंड ही पहले वो बॉम्बे में जॉब था उनका, फिर नागपुर में था। और उनको बचपन से, काका बारिया की ये बात चल रही है, बहुत साधु वली पीर के संत टूम्स पे जाके, दरगाह पे जाके वो बाउ डाउन करते थे। और अब नागपुर पहुंचे तो ताजुद्दीन बाबा मिले। दिस इज ऑल लाइक 20s 30s की बात होगी शायद। तो नागपुर में ताजुद्दीन बाबा के साथ वो जुड़ गए, और ताजुद्दीन बाबा ने कहा ऑल विल बी वेल विथ यू। फिर वो पूना आए और बाबा जान को मिले। आई वेयर इज इट, हाँ, फिर बाबा जान को मिले, और उनको भी जाके वो काफी टाइम मिलते थे। तो बाबा जान उनको एक टाइम कहते हैं काका बारिया को कि आप हमेशा मेरे पास आते हो, मुझे मेरे पास आके मिलते हो, लेकिन आपने कभी भी कुछ मुझसे मांगा नहीं है। तो यू हैव नेवर आस्क्ड मी फॉर एनीथिंग, बाबा जान इज सेइंग दिस। तो काका बारिया सेज, यू आर द ओशन एंड आई एम ओनली अ ट्रेवलर। आई हैव कम टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम दैट ओशन। उनकी क्या तैयारी थी, व्हाट अ ग्रेट सोल ही मस्ट बी, कि वो सिर्फ वेरेवर ही वॉज वो आते थे और बाबा जान को बोलते थे कि आप तो ओशन हो और मैं तो सिर्फ एक ट्रैवलर हूँ, एंड मैं बस पानी पीऊंगा आपके दरिया से, जो भी डिवाइन ओशन से। फिर वो नारायण महाराज के पास गए, और नारायण महाराज ने उनको अंदर दत्त मंदिर में बुला के उधर भी बिठाया। फिर वो गए उपासनी महाराज के पास, तो उपासनी महाराज ने कहा कि जाओ मेहर बाबा के पास। तो वो गए मेहर बाबा के पास, और मेहर बाबा के पास ही वेंट इन 1926। 1926 पहले टाइम ही एंड दो दूसरे फ्रेंड्स जो थे वो मेहर बाबा को मिलने आए इन मेहराबाद में ही आए मिलने के लिए। तो जब बाबा जब बाबा को मिलने आए और बाबा के पास आए, बाबा 26 में तो साइलेंट था, बाबा ने कहा आपके शूज मुझे दो। तो तुरंत काका बारिया ने शूज उतारे और बाबा ने उनके शूज पहने, और फिर बाबा ने पहने, और फिर बाबा ने कहा, उतार के वापस दे दिया और कहा कि ये मुझे फिट नहीं हो रहे। तो काका बारिया समझ गए, एक्चुअली वो शूज एकदम परफेक्ट फिट थी, लेकिन काका बारिया समझ गए कि अभी मेरा टाइम नहीं है, मुझे अभी निकलना है, बाद में मैं आऊंगा करके। He understood the deep meaning of this statement. The shoes had fitted Baba properly, but what Baba meant was Kaka was not yet fit to join Baba at that time. तो बाबा ने फिर कहा कि you continue with Upasni Maharaj. फिर 15 years के बाद, after Upasni Maharaj dropped his body 41 में,
and he उस टाइम पे just before Upasni Maharaj dropped his body, he had come and met मेहर बाबा. उस टाइम पे उस वो टाइम पे काका बारिया थे. और जब उनको याद रहा कि ये जो बाबा ने कहा कि मेरे शूज अभी फिट नहीं हो रहे करके, देन आफ्टर दैट ही जॉइन बाबा. एंड काफी उनके जो मस्त के टूर्स में और बाबा के साथ मस्त फाइंडिंग में जाते थे काका बारिया, वो वेफेरर्स बुक में लिखा गया है, या इट इज डिटेल्ड एंड इट इज रिटन ओवर देयर. नाउ दिस इज ऑल डे 1. हाँ, October 16th, second day, day 2. बाबा के पास सुबह में जाते हैं. बाबा आज हाउ आर यू, डिड यू हैव टी, ब्रेकफास्ट, हाउ आर यू फीलिंग. फिर बाबा कहते हैं ऑल द बोन्स इन माई बॉडी आर पेनिंग टूडे ड्यू टू द स्ट्रेन ऑफ माई यूनिवर्सल वर्क. तो हैरी आए नहीं थे उतने में, थोड़ा लेट हुए होंगे. तो बाबा पूछते हैं कि अभी कैसे बताए कि उसका डिपार्चर का टाइम हो गया है एंड उनको बहुत बुरा लगेगा कि आई एम सेंडिंग हिम बैक टू यूएस, ही इज वेरी सेंसिटिव करके बाबा कहते हैं. फिर बाबा गए कैकोबाद के साथ बैठे. फिर वापस आते टाइम ये दोनों को कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कैकोबाद के साथ बैठने के लिए. आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट नाउ फॉर 700 years. इतना कार्य उनका जो भी स्ट्रेसफुल होगा करके. फिर बाबा कहते हैं कि हैरी देखो कितना बेवकूफ है, मुझे 80,000 है या 8,000 है, इट्स नॉट क्लियर, डॉलर्स मुझे देना चाहता है करके. लेकिन मैंने ना कहा कि ये पैसे हम नहीं, मैं तो, मुझे क्या फायदा, मुझे कोई जरूरत नहीं है. लेकिन यस, $1,000 वापस जाके अमेरिका में ही शुड यूज इट फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द बुक स्टे विथ गॉड करके, ये बाबा कहते हैं. फिर वो पुअर पर्सन आते हैं, फिर पुअर पर्सन का बाउ डाउन करते हैं. देन ही बाबा के हैरी सेज द आरती एंड प्रेयर. एंड वो टाइम पे ही वाज वेरी लाउड. सो मेरे फादर को दैट, आई हैड सेड इट बिफोर आल्सो, ही नेवर लाइक्ड लाउड साउंड्स. इवन जब उनके डिस्पेंसरी में कोई भी बच्चा रोता था, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती थी. पहले उनके ये करते थे एंड फिर उसको बाहर निकाल देते थे. तो हैरी को बताया होगा उन्होंने कि व्हाई आर यू शाउटिंग. तो हैरी नेक्स्ट डे ये 16th को बहुत ही कम धीमे आवाज में प्रेयर करते हैं. तो बाबा ने प्रेयर स्टॉप करके पूछा कि व्हाट इज हैपेंड टू यू. तो वो कहते हैं कि आई वुड नॉट लाइक टू डिस्टर्ब द auditory apparatus of our guests or visitors here. तो मेरे फादर बोलते हैं कि आई विश द ग्राउंड वुड हैव ओपन एंड swallowed मी अप करके. तो बाबा कहते हैं कि प्रेयर, द लाउड और सॉफ्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रेयर हैज टू बी नेचुरल एंड फ्रॉम द हार्ट. फॉर हैरी टू शाउट द प्रेयर इज नेचुरल फॉर हिम करके. एंड फिर बाबा बोलते हैं यू टॉक इन योर, यू से द प्रेयर इन योर रेगुलर वॉइस. तो मेरे फादर कहते हैं कि रेगुलर नहीं, डबल जोर से. उस दिन जोश में, क्योंकि बाबा का परमिशन था, उन्होंने प्रेयर बताई करके. फिर बाबा मंडली को कहते हैं होशंग, दैट्स हिज फर्स्ट नेम. होशंग सिंसियरली वांट्स यूनियन विद गॉड एंड ऑल्सो वांट्स टू बिकम अ परफेक्ट मास्टर. I have given him the key to attain this goal, and that is 100% obedience. He is doing it. Who knows, someday I may make him one. तो बाबा सबको कहते हैं कि भाई ये उसको बहुत यूनियन विद गॉड या बाबा एक हो जाने के लिए उनकी बहुत इच्छा है, और उनको परफेक्ट मास्टर भी होना है करके. ये मैंने चाबी दी है. क्या चाबी है? 100% ओबीडियंस करके. अब बाबा कहते हैं देखेंगे. अब इसमें नहीं लिखा है, लेकिन एक पहले बाबा ने गुरु प्रसाद में, अनदर टाइम पे, सॉरी, बाबा ने समथिंग क्या मांग रहे हो या कुछ मांगो करके. तो मेरे फादर ने बोला आई वांट गॉड रियलाइजेशन. सो बाबा केप्ट क्वाइट, पॉज्ड, क्वाइट तो नहीं, पॉज्ड, एंड फिर कहा कि ओके डन, बट फॉर 12 years you have to repeat my name without sleeping or at all. Constantly you have to say my name. So his medical plus that questioning critical mind immediately said, Baba, ye to nahi hoga.
And then Baba just kept quiet. Then he repented later and said, I should have just said yes, Baba. अगर मैंने yes बाबा बोला होता तो मे बी वी डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड, पर वो नहीं था उनके दिस जन्म में, तो वो नहीं हुआ करके. एंड there was something else also. It will come to me. Yeah. फिर आगे बढ़ते हैं इन दिस द नेक्स्ट सेकेंड डे पे. देन ऑफ कोर्स बाबा जो डिस्कोर्सेस करते थे, तो मनी के नोट्स में से अर्जुन के बारे में जो बात थी, तो देयर वाज लॉट ऑफ डिस्कशन. एंड द ओनली बाबा एट द एंड मजदूर अर्जुन के बारे में डिस्कशन हुआ, सूफी लिटरेचर के बारे में कुछ पढ़ा गया अबाउट मजदूब्स. फाइनली जो हुआ, जो बाबा ने कहा, the grace of the master depends on his will, irrespective of the preparation of the seeker. जो हम कहते हैं ना ग्रेस, बाबा की जो ग्रेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जितना भी आप मांगो, जितना भी आप प्रिपेयर रहो, ये करो, जो भी कुछ कहो, आखिर में बाबा की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है. फिर बाबा कहते हैं, पन तो क्या कर सकते हो, प्रेपरेशन नहीं करोगे तो आप क्या करोगे. बाबा सेज द ओनली थिंग टू बी डन इज टू होल्ड ऑन टू माई दामन इवन इफ योर नेक इज सेवर्ड फ्रॉम योर बॉडी. जो बाबा कहते हैं कि वो हाथ जो है वो बाबा का सदरा या दामन को पकड़ना है, इवन इफ जो आपका सर कट गया तो भी. मतलब बेसिकली यू हैव टू बी सो स्ट्रॉन्ग, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, कि लेट गो नहीं करना है. फिर बाबा और भी देते कि इवन इफ द हैंड दैट होल्ड्स इट इज कट ऑफ इट्स फिंगर इज कट ऑफ. अगर हैंड जो दामन को पकड़ा है, इफ द हैंड इज कट ऑफ, फिंगर्स ऑल्सो शुड नॉट लेट गो ऑफ बाबाज दामन. मतलब इतना जकड़ के हमें पकड़ के रखना है बाबा के दामन को. फिर बाबा गए, फोटोग्राफ्स हुए. फिर लंच के बाद डे 2 है, लारिस की गेम हुई. और फिर बाबा होशंग को पॉइंट करके कहते हैं कि ट्रस्ट मी 100% करके. तो वो कहते हैं यस बाबा. फिर बाबा कहते हैं यू आर फॉर्चुनेट. एंड देन अनदर डे, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, दूसरे दिन पे अगेन बाबा से ट्रस्ट मी 100%. सो ही रिप्लाइज yes baba. Then baba says even 99% is not good, 100% very मेरे लिए very difficult somehow. पर ये मेरे फादर ने किया होगा, किया है, it's I don't know, पर ये बाबा के वर्ड्स है उनके लिए करके. देन ये बाराकोट वाला मस्त का इंसिडेंट के उस दोपहर में एक मस्त थे, सॉरी, जो ऐसे, वो एक डमरू थी उनकी, और वो आते थे, और उनका नाम ही बाबा बाराकोट मस्त किया था, क्योंकि वो 12 कोट पहनते थे. गर्मी, रेन, शाइन, वॉट एवर, यूज टू वेयर दैट. एंड ही यूज टू सिंग एंड ही यूज टू ट्वेल राउंड एंड ही यूज टू कम टू मेराजाद. सो वो आए and he was there. Baba was happy. And then they saw के उनके ये मस्त को there was a dog bitten थे करके. और बाबा ने वो मस्त को कुछ खाने के लिए भी कुछ दिया करके. और हाँ, उसने कुछ चिंदी, रैग, कपड़ा उनके जहां वो डॉग बाइट हुआ था वो लगाया था. तो बाबा पूछते कि भाई क्या है, तो खोल दो. तो वो खोलते हैं और वो वुंड काफी what do you say, it was a bad wound करके. तो फिर बाबा कहते यू आर अ डॉक्टर, डू यू हैव योर थिंग्स. हमेशा माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज कैरी हिज मेडिकल किट. तो ही सेज यू ड्रेस द वुंड ऑफ दिस मस्त, लेकिन बी वेरी केयरफुल. एक तो वो एक जगह में बैठेगा नहीं, पाँव नहीं देगा, ही विल कीप मूविंग. एंड इफ यू गेट हर्ट, यू बी वेरी केयरफुल. ये मस्त को रेबीज, टाइफॉइड, व्हाटएवर कुछ भी नहीं होगा, बट यू हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग इट. सो यू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू administer first aid to this mast करके. And my father says, and he says, after dressing, Baba's orders, after dressing, wash your hands very carefully. ये बाबा के orders थे. And डॉक्टर बोलते हैं कि दिस वॉज द फर्स्ट मस्त आई हैड एवर सीन इन माई लाइफ एंड आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू सर्व हिम करके. फिर दोपहर में वापस बाबा
कस्टर्ड एप्पल सबको प्रसाद के लिए देते हैं एंड कहते हैं अभी कस्टर्ड एप्पल के बाद पानी नहीं पीना है थोड़े टाइम के लिए। फिर जैसे बाबा ने फर्स्ट डे पे प्रॉमिस किया, बाबा उनको गार्डन में लेके गए, जो गार्डन मेरा देखते थे, और फिर जो पंप था जहां से पानी आता था वो भी देखा। हैरी वॉज ऑल्सो देयर, फोटोग्राफ्स लिए गए, और डॉक्टर भरूचा को चांस मिला होल्डिंग द अम्ब्रेला ओवर बाबा's हेड करके। बाबा कहते हैं दिस इज अ वॉक इन द गार्डन ऑफ अल्लाह एंड आई ट्रूली मीन इट। When we go to Merazad after so many years also, we still feel that you know Baba की presence या जो भी जो शांति या whatever you call it, that divinity is definitely there करके। फिर वापस वो दिन प्रसाद का था, वापस बाबा शाम को सबको टॉफीज दिए गए, और फिर बाबा होशंग को कहते हैं डोंट वरी, बी ब्रेव, ट्रस्ट मी, दिस इज द सेम टाइम, ट्रस्ट मी 100%, इट शुड नॉट बी इवन 99% करके। फिर बाबा गए उनके रूम में और 5 बजे वापस आए, और जो बहुत ही रेयर था, और उनको मिले और पूछा कि सब कुछ ठीक है, तो कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो बाबा कहते हैं चलो मुझे आपका रूम देखना है। तो तो उनको दिखाए दिखाए उनके रूम्स दिखाई दिए, और पुकार की कैबिन में भी गए, और बाबा पुकार को कहते हैं कि आपकी कैबिन बहुत गंदी है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। एंड फिर न्यू लाइफ का सर्क्यूलर बाबा ने दिया, कावस को एक कॉपी और होशंग को एक कॉपी, एंड बोला कि बाबा विल गिव समथिंग ग्रेट टू द यूनिवर्स ऑन द 30th of December 1959. Baba feels very happy to give you this information, and so he decided to come at this time and tell it to you. मतलब बाबा वो न्यू लाइफ सर्कुलर भी देते हैं, एंड ही सेज कि 29th of December 1959. नाउ आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड, वी कैन चेक लॉर्ड मेहर के उस टाइम पे क्या था, लेकिन एनीवे जो बाबा ब्रेक हिज साइलेंस वगैरह, बाबा का टाइमलाइन और अपने जो रेगुलर कैलेंडर है बहुत फर्क है करके। फिर हाँ, फिर ये जो सूरत का कार्य था उसके बारे में बाबा इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उनके उनके साथ। तो वो कहते हैं कि यू लीव मेराजाद, गो टू सूरत, एंड वहां 2 दिन रहो, 2-3 दिन रहो, एंड फाइंड अ फैमिली। आई एम गोइंग, बाबा कहते हैं आई विल गिव यू 500 रुपीज ईच, 500 रुपये, और ये आपका कार्य है कि यू हैव टू फाइंड अ वेरी वेल डिजर्विंग फैमिली जिनको ये पैसों की जरूरत है। इट कैनॉट बी बेगर्स जो भीख मांगते हैं, इट कैनॉट बी फार्मर्स जो खेती करते हैं, इट हैज टू बी अ फैमिली विथ मेनी चिल्ड्रन, एंड ऐसी फैमिली जहां वो पर्सन वो इज्जत वाला है, वो पूछेगा नहीं, ही विल नेवर आस्क एनीबडी फॉर मनी, लेकिन उनको बहुत ही सख्त जरूरत है। अब होल ऑफ सूरत इवन इन 1959 इट वाज अ बिग प्लेस, पर ऐसे आप कोई भी ये 2 व्यक्ति को फाइंड आउट करना, वॉश देयर फीट, bow down and give them this money. I don't know if it was to say, if they had to say कि बाबा ने दिया था, नहीं, बाबा ने ऐसा कुछ बोला नहीं कि ये पैसे मैंने दिया, ऐसे कुछ बताओ, बट दिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू डू नॉट नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज करके ये बाबा कहते हैं, एंड काफी ढूंढो, सब कुछ करो, आई विल हेल्प यू करके, एंड एनी कास्ट, इट द फैमिली कैन बी एनी कास्ट करके, and before you go I will wash your feet and I will bow down to you, so that is carried forward to Surat for the person who deserves this करके। तो that is what Baba says, and हमें and दूसरे बोलते हैं कि 28th को आपको फास्ट रखना है एंड साइलेंट रहना है, एंड 31st को ही नवसारी जाना है, उसके पहले बिल्कुल नहीं जाना। एंड फिर बाबा कहते हैं अभी टाइम है, एरज को बोलो बताने के लिए स्टोरीज, जहां हम ढूंढते थे कोई बॉयज के लिए या कुछ ऐसे फैमिली के लिए जो ट्रूली डिजर्विंग था, एंड यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू गो अबाउट इट करके। फिर बाबा लास्ट में कहते हैं बिफोर रिटायरिंग, आई कैनॉट डू दिस वर्क माई सेल्फ नाउ,
and so I have entrusted it to you. तो फिर बाबा रिटायर्स टू हिज रूम. देन एरज टॉक्स अबाउट हिज स्टोरीज के हाउ, एक तो वो वेरी टचिंग स्टोरी जो दिवाली के जो दिए की है इन साउथ इंडिया, वो एक स्टोरी थी. फिर अनदर पर्सन जो, देन बाबा सेज इन अ विलेज इन भोर, बाबा ने खुद बताया कि फाइंड दिस पर्सन टू गिव द मनी, बट बाबा आई मीन एरज couldn't find him, and finally with great difficulty he found him. And then एक दूसरी फैमिली एरच बताते हैं कि वेल्दी फैमिली थी, अच्छी खासी फैमिली थी, लेकिन कुछ बुरे वक्त के लिए वो उनका पूरा पैसे, लाइक यू नो ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, ही कुड नॉट बेग. एंड उनके दो बेटियां थी जो शादी के टाइम पे आ गई थी. और बाबा ने जब बाबा गए थे, एरज ने ये फाइंड आउट किया और बाबा गए थे, तो बहुत ही खराब हालत थी ये लड़कियों की वो. और फिर ये जब बाबा ने पैसे दिए तो ये आदमी इतने शॉक में हो गए कि ही फेंटेड, वो ये और वो लड़कियां गुस्से डर गई कि ये बाहर से कोई आए हैं एंड दे हैव डन समथिंग टू आवर फादर करके, और किल्ड हिम. बट देन he came around and he was very happy and he thanked Baba. So basically it was like Eraj saying कि आप जाओ, ट्राई करो, put in your best effort, आपको भी जो भी है वो फैमिली मिल जाएगी इन सूरत करके. फिर बाबा जब हैरी का ये यू नो डेज ऑफ गोइंग वे देयर, सो हैरी और भी थोड़े डाउन मूड में थे, चिड़े हुए थे, तो बाबा को हैरी बाबा को पूछते हैं कि मुझे एक सुवेनियर, गिव मी अ सुवेनियर टू कैरी विथ मी, you're सेंडिंग मी अवे, you're नॉट कीपिंग मी हियर, तो गिव मी अ सुवेनियर. तो बाबा इट सीम्स उनका खुद का सदरा जो पहना हुआ था वो सदरा निकाल के इनको देते हैं, हैरी को देते हैं कि हियर यू टेक दिस विथ यू. एंड देन ही ऑल्सो गेव हिम अ पेयर ऑफ सॉक्स, बाबा ने जो सॉक्स पहने थे ही गेव हिम दैट ऑल्सो. द बिलवेड वुड गिव अवे एनीथिंग टू हिज फॉर हिज सिंसियर लवर्स करके. ये हुआ, दैट वाज डे 2. देन 17th अक्टूबर डे 3, I'll go ahead. तो ये दिन था फास्ट का एंड साइलेंस रखने का, द फर्स्ट फास्ट डे करके. तो बाबा जल्दी आए, उनको उनके साथ बात की, एंड बाबा ने पूछा डिड यू हैव अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट. फिर कहा कि आई हैव कम अर्ली टुडे बिकॉज ऑफ योर साइलेंस. फिर बाबा ने कहा डोंट वरी, अगर कुछ हुआ कि एक आध शब्द निकल गया, डोंट वरी, बट डोंट स्पीक अगेन, इवन इफ बाय मिस्टेक you have spoken. I have to see to such minute details of everyone, and yet I remain aloof from all activities. फिर वो साइलेंस रहे, और उस दिन सुबह में मद्रास मेल के लिए कुछ बाबा की आर्टिकल्स जानी थी, तो उसका सब पूरा रीडिंग हो रहा था, प्रूफ रीडिंग हो रहा था वगैरह, और बाबा उसके साथ बिजी थे करके. फिर बाबा खुद कहते हैं कि पूना में मूड जो था वो बहुत अलग था इधर से. उधर दर्शन थे, मीटिंग्स थे, थोड़ा अच्छा था, लेकिन इधर ड्यू टू द बर्डन ऑफ इंटरनल वर्क देर इज इन्फिनिट डिप्रेशन. When I speak, the phase will be quite different. In all these phases, the surroundings around me only change, but I remain what I am. बहुत ही ये how Baba points out कि all his work is happening at different times, and yet each and every what shall I say work is important. फिर अमेरिका से जेन हेन्स का लेटर पढ़ा गया, उसके तीनों बच्चों ने कुछ लिखा था, तो बाबा ने वेंडी एंड चार्ल्स का जो लिखा हुआ था वो रीड आउट किया करके. फिर बैदुल थे, तो बाबा बैदुल को पॉइंट करते थे, करते हैं, और बैदुल को बाबा ने ऑर्डर दिया था कि साइलेंस भी रखने का, एंड नो शेविंग एंड नो कटिंग योर हेयर करके बाबा ने उनको ऑर्डर दिया था. फिर बाबा इंट्रोड्यूस करते हैं कि बैदुल जो थे मस टूर्स में कितनी मदद की, और कहाँ कहाँ जाके वो मस को लेके आते थे. अभी कोने में पड़े हैं, नो टॉकिंग, नो ये, तो वो ही मस्ट बी मिसिंग दोज मस्ट टूर डेज करके. तो एरज हंस के कहते अरे बाबा, बैदुल is not missing the musts, he is missing the non-vegetarian food which he can have
इन लार्ज क्वांटिटीज ऑन सच टूर्स करके। तो बाबा हंसते हैं एंड कहते, बाबा बैदुल तो कुछ बोल नहीं सकते थे, कुछ रिप्लाई भी नहीं दे सकते हैं करके। और बाबा कहते हैं हाँ, कोई कोई रेयर ओकेजन्स पे जो मस्त के आसपास और मस्त को कुछ करने के लिए वो नॉन वेजिटेरियन फूड भी देते थे करके, वो परमिशन थी। और मेरे फादर बोलते हैं कि मुझे एक टाइम पूना में सभी मंडली को इच्छा थी कि मैं भी एक नॉन वेजिटेरियन पार्टी, बिरयानी पार्टी करके करूं, लेकिन मैं रेडी था, पर मैंने कहा कि आप लोग पूछो बाबा को। तो कोई भी मंडली में हिम्मत नहीं थी, डॉक्टर भरूचा में भी हिम्मत नहीं थी बाबा को पूछने, उन लोग को भी नहीं थी, तो वो पार्टी तो रह ही गई। लेकिन वो गुरु प्रसाद में मैंगोज ये वो काफी कुछ लाते थे सभी नवसारी बाबा लवर्स के इसमें। फिर बाबा रिचुअल्स एंड सेरेमनीज के ऊपर बात चली, और बाबा कहते हैं कि हिंदू सेरेमनी, हिंदू कस्टम्स बहुत है, और ये अभी गणपति गई और नवरात्रि, इतने सारे कस्टम्स वगैरह। तो एक स्टोरी बताई गई कि देयर वाज वन बिग पंडित जी, वेरी लर्नेड, और वो डिस्कोर्स दे रहे थे और बहुत अच्छे से स्पीच वगैरह दे रहे थे। अब वो ही ऑडियंस में कोई दूसरे सेंट बैठे थे, वो भी एक बड़े पंडित जी या सेंट लिखा है साधु जो भी थे, तो वो उठे और कहे कि कैन वी कम टू द माइक, कैन आई स्पीक। तो वो बोले और उनके व्यूज उन्होंने बताए विच वे अपोज टू जो वो मेन सेंट बात कर रहे थे। दोनों स्टार्टेड फाइटिंग ऑन स्टेज, एंड they are saints and supposed to be holy people, and they started fighting karke, much to the amusement of the spectators. Baba said, when I speak, all this fuss will be over. There was another thing also where वो saint then came to Baba, वो भी एक story थी, I'll get it. फिर पुअर प्रोग्राम हुआ, बाबा ने वो मान आदमी को ये किया, एंड बाबा ने वापस किया, कहा कि जो जप दिया था ऑलमाइटी गॉड का, वो हमेशा आप बोलते रहो करके। देन इवनिंग में ये तो फिर वो कुछ कव्वाली वगैरह जो थी वो हुई, एंड बाबा यूज्ड टू एक्सप्लेन एंड टॉक अबाउट दीज कव्वालीज करके। फिर उस दिन तो वो हाँ 7:55 को, मतलब 8 बजे जो, नहीं 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 सॉरी, आई मिस्ड वन पैरा, 4:30 को उस दिन बाबा ने मैसेज भेजा, बी हैप्पी, ब्रेक साइलेंस एट 8 PM E12। बाबा आए नहीं, लेकिन मैसेज भेजा। अगेन एट 6 PM another message from Baba arrived, be happy in my love, don't speak or even make a sound till 8 PM करके। इफ बाय मिस्टेक यू स्पीक, डू नॉट वरी, क्योंकि वो टेंशन नहीं आने का कि नो साउंड, नो पॉपिंग। लेकिन बाबा ने वापस वो ये किया कि इफ यू स्पीक इट्स ओके, डू नॉट वरी करके। तो 4:30 को मैसेज आया, फिर 6 o'clock को आया, फिर वापस 7:45 को बाबा का मैसेज आया कि हाउ इज योर हेल्थ, आप ठीक तो हो, आपने ये रखा। 7:55 को वापस मैसेज आया, break your silence at 8 by repeating the jap given to you. Don't fear. After 8, talk and eat well करके बाबा का ये मैसेज था। वापस 8:05 को वापस मैसेज आया, बी हैप्पी, रिमेंबर बाबा, डिड यू ईट वेल। फिर मेरे फादर और विश्वनाथ साहब कहते हैं, वन डज नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस द लव दैट बाबा हैड for his lovers. It can be seen in these small gestures करके, these short small gestures. फिर उस दिन रात को पुकार के साथ ये दोनों बैठे थे, और पुकार कहते हैं कि आंध्रा में एक इंसिडेंट हुआ था कि वो गाड़ी दूसरी गाड़ी में थी, बाबा की गाड़ी आगे थी और एक कलवर्ट था, और ये पीछे वाली गाड़ी जो थी वो उन्होंने देखा कि वो कलवर्ट में, वो पूरा कलवर्ट टेम्पररी स्ट्रक्चर गेव वे, वो पूरा टूट गया, एंड वो पूरी बाबा की गाड़ी वेंट लाइक व्हाट डिड ही राइट, लाइक उल्टी, नियरली उल्टी या साइडवेज गई,
लेकिन in the next instant Baba's car was right on the other side as if कुछ भी नहीं हुआ था करके. तो ये उनकी स्टोरी थी. फिर बाबा पुकार कहते हैं कि एक टाइम बाबा ने एक मस्त को बुलाया और कहा कि लेके आओ. तो बहुत प्लीडिंग किया, बहुत बोला कि कम बाबा, माय ओल्डर ब्रदर वांट्स टू सी यू वगैरह. तो वो मस्त उठाई नहीं और हटाई नहीं. तो पुकार ने क्या सोचा, एंड ही वॉज ऑल्सो अ बिग हेफ्टी मैन. तो उन्होंने वो मस्त को उठा लिया और बोलते हैं कि उनका विचार आया कि आई जस्ट पिक हिम अप एंड टेक हिम टू बाबा. तो वो मस्त को इतना गुस्सा आया, उनके पास एक स्टिक थी, एक काड़ी जैसे ट्विक थी. वो उन्होंने पुकार की आई, एक आई में पूरी डाल दी और पूरा आई, ही ऑफ कोर्स ड्रॉप द मस्त एंड ही स्टार्टेड ब्लीडिंग एंड बहुत ही पेन हुआ करके. एंड उन्होंने देखा कि भाई ये गई, अभी मेरी आंख गई, आई विल नेवर बी एबल टू सी अगेन करके. तो वो जो भी फर्स्ट एड लगाया, और to his amazement, his vision returned after some time and the bleeding stopped. पूरी काढ़ी गई अंदर. बाबा पुकार कहते हैं कि this is nobody else but बाबा, what you call, saving me. फिर ये तो रेजिस्टेंट वाले मस्त थे. फिर दूसरे जो मस्त थे, वो बाबा, वो पुकार जाते हैं और वो कहते हैं बाबा आ गए वापस अमेरिका से. ये मस्त जो है, ये 1956 की बात है. और फिर वो बहुत ही आराम से वो मस्त आ गए. दूसरी टाइम जो थे, वो एक दूसरे मस्त के लिए पुकार गए थे. तो बहुत ही गुस्से और चिढ़ गए और बहुत ही गाली गलौज से पुकार को बताया, बात बात की. और फिर वो आखिर में वो मस्त कहते कि अगर वो मुझे बुला रहे हैं तो उनको आने दो, मैं नहीं जाऊंगा उधर आप उनके पास करके. व्हाई शुड आई कम गो टू हिम करके. ये ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि ये रिएक्शन क्यों होते हैं मस्त के, कि दे आर सो हैप्पी इन दैट, वो इनकी इंटेंस धुनकी में दे आर encapsulated in their blissful dream state. They don't want to get out of it. They forget their goal and refuse to be awakened by Baba, and that's why Baba calls them karke. So this is, I will stop here. Okay. Now is 18th October. Samji, Yes, Mamji, bolo. 7 o'clock. It's past 7. I'll stop here. I hope nobody went to sleep. So Does anyone want to ask any questions? I'm sure they must be knowing the stories also, but this is the way my father chronicled it, and that's how I'm narrating it in my Very own interesting. way. I didn't know quite a few of these stories. You must Kusaving that हाँ, पुकार माना. Yeah. so many. Dilshad Kapadia, your friend, wants to ask something. Go ahead, Dilshad. Please. Jai Baba, Yeah. there are two things. You mentioned something about the story of South India and some Diwali. हाँ. So that number one, and number two, when you were talking about Kaka Baria and how he came to Baba, what was the connection with this Hoshankal stay? I couldn't establish that, or maybe I missed. If you can throw some light. Thank you very much. Yeah. So the thing was that at that time, there were a lot of men mandli, women mandli also, which he would not know about. So and after Baba retired to the women mandli side at 7 p.m., they were awake. You couldn't sleep so early, right? So they used to sit every day in the evening and talk to different Baba lovers. So one of the persons was કાકાબારિયા. That's why પુકારની સ્ટોરી છે, કાકાબારિયાની સ્ટોરી છે, મેરદાસની સ્ટોરી છે. It's like that. He used to take notes and they used to sit and listen to all these stories. And the Diwali story, to Sam will tell you. It's a very heart-touching story. Or we can keep it another time, whatever. Another time would be a good idea. Yeah, Perhaps during Diwali itself, we you will should say it. try and narrate the story so it'll Yeah. get better impact. Anybody else wants to ask anything? This lady called Farah
sitting very quietly right next to me. Jai Mer Baba. Ji. My actual question was ideally to ask about this story only, which about the Diya and Diwali that you mentioned, but Yeah. I have not heard about that. So that was in my mind, but we will now keep that for the end. But one thing I wish to, I liked about, it's not that I'm asking, I'm just sharing, is the relationship what your father spoke about Harry. So, Hmm. how that love and bond, and how Baba, in his own way, was so compassionate towards him, especially when he gave his own sadra and the socks. So, are there anything more like that? If you can share Yes. an instance. Yes, yes. Baba, there are what you call poems, little couplets also Baba had written for him. And then when Harry used to get angry, he used to say, "You're a stinking father, stinking father." I think stinker father, stinking father. Then Baba laughed and then he said, "Okay, you are this thing of a son also, you need to follow my thing." That was also there. But I'll just read one of the poems, which was on 20th October, where Baba says, "Harry, you are very dear. That's why I have kept you near. Now let this be very clear. As long as you're here, remain happy and full of cheer." This was the time when he was very upset, and he used to call Baba also old man and something else. Karke. Wait, where did I go? "Remain happy and full of cheer. About my promise, do not fear. I will speak and you will hear, whether you are there or here." Then another of the Harry's poems was an hour later, 1 hour more for before that was Harry's fasting day. 1 hour more, then open your tummy, dear, and with eatables Agor, your energy restore. With God's name in your heart, with Maya wage a war, and taking Baba's name, make Maya lick the floor. This was one of the other poems also. Dilshad, go ahead. Dilmer, I'm sorry, but are you trying to say that this Manli or this person who was so near to Baba would say things like this, and Baba would. Yeah, there is a whole thing. Maybe another time I can read it and then how Baba explains it to him. Yeah, yeah, yeah. And one more clarity which I don't have is that you mentioned in the beginning that this one foreign Manli person had come with a Polaroid, and Harry apparently did not have eyesight. So Right. how did he take the photographs? No, he didn't. He brought the recorder and he brought the thing. Padri used to take it. He was not taking photographs. He just got it and these were preserved. That's all. See, that time India didn't have so many things. So they used to, when whatever came out in US, many Baba followers would bring different things, and especially like the films and things like that. Padri used to be the one who used to take pictures. My major concern was that only, that he not having sight, and then the camera thing was like, I did not clarify. no, thank you. I just wanted for me. Thank you. Jai Baba. Anybody else? I just don't know what to say. Thank you, Baba. Harry Kenmore must be such a deserving soul कि बाबा ने खुद ने अपना सदरा and socks उनको gift में दे दिया. These are unmol, priceless gifts that the God man gave to his close lover. And I found that very, very touching, because
Dilshad, the question you asked about the familiar talks about old man and between Harry and Baba. Baba was God, man. And the man part, he played it to perfection, as much as God part also. So in the man part, people did take liberties with him, but when that narrow line was crossed by anyone, that is when he would stop them and say, "Ke Baba, remember I am God also." So see the mahol or the atmosphere around Baba was of a very natural, familiar way the programs would go on. It was no big serious affair where you had to wear something special, and people just laughed and joked. And in fact, Baba didn't like people sitting with a very serious face, and he would say, Kya you had quinine or you had garlic face, and all sorts of things he would tease them, because there is certain kind of joy which one has to experience in the presence of the Lord. That light-hearted atmosphere helps in bringing that joy. And when Baba would come down to their level, kind of a thing, and share this kind of happy moments, each one of them felt that closeness to him. And if Baba were to stay on a very high pedestal and keep dictating, okay, you do this and don't do that and blah, 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 that intimacy would not have happened. And what Baba really wanted was 100% intimacy. Can Haji. Can Yeah, I quickly narrate an incident which, when you said that, Baba drew that line, and when somehow people would take it for granted, he would kind of, knock and say, "Hello, I'm at the end of the day to God." So I had heard the story where Ayer's uncle was helping him out, and Baba was in a physically debilitated state. He couldn't do much, or he had to be helped. I mean, I don't remember exactly, but Eraj in his mind says that, this person is like, talking so much and he can hardly lift himself. Like, he's at my mercy to be helped physically. And then when he goes to Baba, he gets a thorough shock and he just flies back and falls. And then he realizes that Baba is trying to tell him, he could read his thoughts and say, "Look here, you may find me an old man and you may find me weak and needing assistance now, but never forget that I'm God." yes. Thank you. Thank you, Baba. By the way, old man is a slang word for father in Yeah. US. Yeah. Thank you, Ram. Yes, And sure. it was like a mix, the morning half was what I understand is morning half was, little serious about like Arjun and Qawwalis and Sufi thing, and even Thomas Kempis, something about him. And then the afternoon was Larisk and the fun things, go taking a walk. So there was that balance, is what I get. But Harry was pulled up. What I read, I didn't come to it. He didn't get away with calling Baba, because then Baba explained it very nicely to him. Okay, you are also disobeying my orders. You are supposed to remain happy and cheerful here. Why are you grumbling and moaning? I'm going back, or I'm not this, Karina. It's written well. I'll read it out another time. Ram, your brother Merchan
is also very, very deep into Baba. In fact, this morning he's the one who rang me up and mentioned about the birthdays of Darwin Shaw and Yeah. Meher. Also, today is the day Baba met Gandhi. Really? Yeah, yeah. So I think Gandhi said, "I'm very happy to meet Meher Baba on my 62nd birthday," something like that. Oh, wow. Yeah. So a lot of things happened today on this day. Yeah. Let's see what happens today now, because I go home and maybe I'll just have a omelette and go to sleep, or God knows what. Yeah. Do you know Ross and Roy Hayes? I'm sorry? From Ross and Roy Hayes from Australia? Our good buddy. Ah, Roy passed away this morning. oh, Yeah. Very sad. Baba. Mm. I'm going to miss my drinking buddy. Baba. Okay. Anybody else? If you want to ask now or hold your peace forever. I think people We hold our peace till next Thursday when Dilmer comes. correct. Very well said, Dilshad. Okay, so now we shall disperse with prayer, Aarti, a minute silence, and then, of course, we take Baba with us, because that's all that matters in this world. Our getting together, spending an hour and something, talking about Baba. I don't know how others feel, but it is a very, very enriching experience for me. Every time I get to learn something new, I feel closer to him, and I guess that's what life is all about. Jai Baba. Hello. अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो
अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्परि परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुर मज़द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वाद से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक का अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। भुजावे नार जहलतनी एकर खुद रत्ने फरमातु छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु अयामुर शत मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात थी वाकिफ थई बै थो मेहर बातू तू छे माँ लिख हकीकत नो तू आशिक बीने आरिफ भी तुझे दरी याए वहदत मारिफत नो हो ही तू फातू हमोर है रब ने साले बखशे
ज्ञान ईजदनु के तू पर महात्मा ज्ञानी छने मुख तारेर फातु खुदाना प्रेमनो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साखिया पी दे पैमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा छनिगे बातू हमारा ना खुदा मेहर बाबा छनिगे बातू भुजावे नार जहलतनी एकर खुद रत्न फरमातू छलागी आश भक्तों ने के पक्षे नूर मातू। अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे ऐसे अपरंपार नेति नेति वेद पुकारे महिमा तोरी अपार दिव्य सनातन परम दयाधन दिव्य सनातन परम दयाधन हे जगदुद्वारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो धूप दीप चंदन चर्चाना भोग लगाना फूल चढ़ाना तुमरा ही तुमको लौटाना काहे बड़ाई करूं मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो सकल निधि के तुम कारण हो सकल विश्व तारण हारे हो तुम सम और नहीं तुम ही हो हे सत अवतारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो सकल चराचर तुमरी माया माया भी तो तुमरी छाया तुमरा अंतन कोई पाया तुम हो अनंत खरो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो अपने को जब जो नहीं जाने महिमा तुम्हारी क्या पहचाने जो कुछ भी कहते अनजाने गुण गाते तुमरो मेहर मन
आरती स्वीकारो। मेहर मन आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुमरी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको। भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमरो। मेहर मन आरती स्वीकारो। मेहर मन आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाधन, दिव्य सनातन परम दयाधन, हे जगदुद्धारो। मेहर मन आरती स्वीकारो। मेहर मन आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम अवतार मेहर बाबा की जय। Thank you, everybody, for having joined us in this session. Hope you enjoyed it as much as Baba would have enjoyed it. Today happens to be Dasera, so we've still got up to 12 midnight to ask for his help in getting rid of the evil that lies within us and maybe come out victorious by his grace. Thank you, everybody. Until we meet again next Thursday, keep Baba with you. Avtar Meher Baba ki jai.